Assalamualaikum, class 9th syntax book board. Today we are going to start chapter number 7, invertebrata or invertebrates. Our learning objectives: kingdom Animalia, vertebrates, invertebrates, classification of invertebrates and metamorphosis. So, introduction. As we know that there are 5 kingdom systems: kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Kingdom Animalia is further divided on the basis of their cells, that is unicellular and multicellular. Unicellular animals are protozoa and multicellular animals are metazoa. Metazoa is further divided into 2 categories, that is invertebrates and vertebrates. So our today's topic is invertebrates. Let us see what are vertebrates. Vertebrates are a group of those animals who have backbone in their bodies. ऐसे तमाम जानवर जिनकी बॉडी में बैकबोन मौजूद होती है वो तमाम vertebrates कहलाते हैं. And what are invertebrates? Invertebrates, the animals which do not have backbone in their bodies are called invertebrates. ऐसे तमाम जानवर जिनके बैकबोन नहीं होती बॉडी में, रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, उन्हें invertebrates कहते हैं. Let us see the classification of invertebrates. Invertebrates are classified into 9 phylums: phylum Protozoa, phylum Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Echinodermata, Arthropoda. Phylum Protozoa, a group of unicellular microscopic organisms which are mostly free living. ऐसे तमाम जानदार जो कि यूनिसेलुलर है, एक सेल से मिलकर बने हैं, एक सेल पर मबनी हैं या एक सेल पर बने हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं और मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना. दीज आर ऑल्सो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स. Phylum Porifera, they are also known as sponges. They are multicellular. There are many pores in their bodies. They have skeleton composed of silica and calcium. For example, Cycon, Ascon, bath sponges. These are mostly marine. ये समंदर में रहते हैं. इनकी बॉडी जो है वो स्पंज लाइक होती है. बॉडी में छोटे छोटे से पोर्स या सुराख मौजूद होते हैं और इनकी बॉडी की जो ओपनिंग होती है उसे ऑस्किलम कहते हैं. द नेक्स्ट फाइलम इज़ फाइलम Cnidaria. They are mostly marine. They are multicellular. Their skeleton is made up of calcium. Their body have thread-like structure called tentacles which bear poison for defense. They have a cavity in their body called coelentron cavity. For example, jellyfish, corals and hydra. Phylum Cnidaria का एक और नाम है जिसे coelenterata भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी में एक कैविटी मौजूद होती है जिसे coelentron cavity कहते हैं. मोस्टली मरीन है, समंदर में रहते हैं, मल्टी सेलुलर है. इनका जो स्केलेटन है वो कैल्शियम का बना होता है. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है इनकी बॉडी में, जिन्हें टेंटिकल्स कहते हैं, जो कि जिसमें पॉइज़न मौजूद होता है जो उनको उनके डिफेंस में हेल्प करता है. प्लस जब वो मरीन में मौजूद हैं, पानी के अंदर एक ही जगह पर होते हैं, सिजाइल होते हैं, एक ही जगह पर रहकर अपनी पूरी लाइफ गुजारते हैं कुछ नाइडेरिया. तो उनका जो प्रे है, जो शिकार है, उसे पकड़ने के लिए भी टेंटिकल्स यूज़ करते हैं ये. Phylum Platyhelminthes. They are also called flatworms. Their body is very long and segmented. They are mostly parasites. Their mouth is present on the ventral side of the body. They vary in size from microscopic to several meters. For example, planaria, liver fluke and flatworm.
फ्लैट वर्म्स जो है इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स होते हैं इनकी बॉडी में। पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि किसी होस्ट बॉडी में रहता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है और अपना फ़ायदा होता है। जैसे जो लिवर फ्लूक है वो लिवर में रहता है, शीप के लिवर में रहता है, वहाँ से अपना खाना हासिल करता है और उस शीप को जो है वो डिज़ीज़ कॉज कर देता है। Phylum Nematoda. They are also known as roundworms. Their body is tapers at both ends. Alimentary canal is present. They are triploblastic. They are parasites. For example, Ascaris. Nematoda phylum में जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं वो राउंडवर्म्स होते हैं और इनकी बॉडी जो है वो दोनों साइड से टेपर होती है, चिपटी होती है। एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है इनकी बॉडी में। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मींस के जो जर्मिनल लेयर हैं वो 3 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और दे आर ऑल्सो पैरासाइट्स, ये भी होस्ट बॉडी में रहते हैं। फॉर एग्जांपल एस्केरीज, जैसे ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है एस्केरीज है, जो बच्चों के अक्सर पेट में कीड़े हो जाते हैं, ये वही है। फाइलम एनिलिडा, दे हैव सेगमेंटेड बॉडी. They live in sea, river, canal, ponds. All systems are well developed. They are parasites. For example, earthworm, leeches. Annelida phylum से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज़म्स की भी सेगमेंटेड बॉडी है। ये भी ज़्यादातर पानी में रहते हैं। इनके सिस्टम्स काफ़ी अच्छे वेल डेवलप्ड मौजूद हैं इनकी बॉडी में। ये भी पैरासाइट्स हैं, ये एक्टोपैरासाइट्स हैं, मींस कि ये बॉडी के बाहर मौजूद होते हैं। इससे पहले वाले जो वर्म्स थे वो बॉडी के अंदर थे तो उन्हें एंडोपैरासाइट्स कहते हैं, और जो बॉडी के बाहर रह के अपना फूड हासिल करते हैं होस्ट बॉडी से वो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। फाइलम मोलस्का, these animals have soft bodies protected by shells. They are mostly marine. Some live in moist soil. They move with the help of fleshy foot. For example, snail, octopus, यूनियो। मोलस्कन फाइलम से बिलोंग करने वाले सॉफ्ट बॉडी होती है, शेल से प्रोटेक्टेड होती है, मरीन है ज़्यादातर, और या फिर मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं जहाँ पर नमी वाली जो मिट्टी होती है वहाँ। और इनके जो मूविंग लोकोमोशन के लिए इनके पास फुट प्रेजेंट होते हैं, फ्लैशी फुट। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा मीन्स स्पाइनी स्किन। दे आर मरीन, देयर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, देयर बॉडी पोजेस वाटर वेस्कुलर सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल स्टारफिश, सी अर्चिन। इकाइनोडर्मेटा में स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज़म्स हैं, ये भी मरीन है मोस्टली, और इनकी जो स्केलेटन है वो कैल्शियम से मिलके बना है। और इनकी बॉडी में एक ख़ास बात होती है, इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम मौजूद होता है। और स्टारफिश, जैसे कि स्टारफिश के पास 5 आर्म्स होती हैं, तो हर आर्म के अंदर डिफरेंट वाटर वेस्कुलर सिस्टम मौजूद है जो कि इनकी ऑक्सीजन इनहेलिंग में हेल्प करता है। Phylum Arthropoda, they are also called jointed limb animals. Their body is divided into head, thorax and abdomen. They have a skeleton outside the body called exoskeleton. They are found on land as well as in water. For example, cockroach, butterfly, centipede. तमाम फाइलम्स में सबसे ज़्यादा बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है। इस फाइलम से बिलोंग करने वाले तमाम ऑर्गेनिज़म्स की जॉइंटेड लिम्स होती हैं, मींस कि उनके जो हाथ पाँव जिन्हें कहते हैं लिम्स वो जॉइंटेड होते हैं। देयर बॉडी, उनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, मिडल पार्ट इज़ थॉरेक्स एंड द लास्ट पार्ट इज़ एब्डोमेन। और इनका जो स्केलेटन है वो एक्सोस्केलेटन कहलाता है, मींस आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट है, काइटिन से मिलकर बना है। और ये लैंड में भी पाए जाते हैं, खुश्की में भी होते हैं और पानी में भी रहते हैं। और एग्जांपल है बटरफ्लाई, कॉकरोचेस, सेंटीपीड, आर्च, इस तरह से बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं बेसिकली वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं।
अच्छा, इसके बाद है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन इमेच्योर फॉर्म टू एन अडल्ट फॉर्म इनटू 2 और मोर स्टेजेस। बेसिकली जो ग्रोथ का प्रोसेस है, मेच्योर होने का प्रोसेस है, वो कुछ इंसेक्ट्स में कुछ स्टेजेस पर डिपेंड करता है। कुछ स्टेजेस से गुज़रने के बाद कंप्लीट होता है। वो जो प्रोसेस है उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस की टाइप्स यहाँ पर 2 हैं। देयर आर 2 टाइप्स, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इन कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस द यंग वन, द लार्वी हैचेस आउट फ्रॉम एग। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि जो एग है उसमें से जो लार्वी निकलता है, it feeds actively and then encloses itself in a cover to become pupa। वो बहुत ज़्यादा जल्दी फीड करता है। जो भी एग अगर किसी लीफ पर है तो उस लीफ के ऊपर फीडिंग करता है और फिर वो अपने आप को एक कवर में इनक्लोज कर लेता है, कैप्सूल लाइक कवर में, जो जिसे प्यूपा कहते हैं। एंड देन आफ्टर गोइंग थ्रू फर्दर चेंजेस प्यूपा कम आउट फ्रॉम इट्स कैप्सूल, इट्स नाउ कॉल्ड अडल्ट। कुछ चेंजेस के बाद वो प्यूपा जो है अपने कैप्सूल में से बाहर निकलता है और उसे तब अडल्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल गिवन है बटरफ्लाई की। एग है, एग के बाद लार्वा है, लार्वा के बाद प्यूपा की स्टेज है एंड देन अडल्ट है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एग में से बटरफ्लाई ही निकली है। तो ये जो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरने के बाद अडल्ट आया है, ये पूरा प्रोसेस जो है वो मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। और हर स्टेज में डिफरेंट उसकी जो हमें देखने को नज़र आया है ऑर्गेनिज़म वो डिफरेंट है। जैसे एग के बाद लार्वा है, लार्वा के बाद बिल्कुल डिफरेंट कंप्लीट एक प्यूपा है और प्यूपा के बाद बिल्कुल अडल्ट बन जाता है। इसीलिए इसे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, इन दिस टाइप द यंग कॉल्ड nymph emerges out from egg. It is closely resembling the adult except that it lacks wings and its reproductive organs are immature. After the development of wings and reproductive organs are mature, nymph become adult. ऐसे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है? जो एग से निकलता है उसे निम्फ कहते हैं। वो जो निम्फ है वो काफ़ी रिजेंबल करता है अडल्ट से, लेकिन उसमें विंग्स मौजूद नहीं होते उस वक्त और उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं। फिर कुछ डेवलपमेंट्स के बाद उनमें विंग्स आते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं, तब उसे कहते हैं अडल्ट। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ ग्रासहॉपर। एग है और एग के बाद के तीनों स्टेजेस को निम्फ कहा है। ये तकरीबन जो है वो अडल्ट से मैच कर रहे हैं, रिजेंबल कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि अडल्ट तक पहुंचने में पहले उनके पास विंग्स नहीं है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके विंग्स जो हैं वो ग्रो करना स्टार्ट हुए और फिर एक अडल्ट बना। इसीलिए इस स्टेज को इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। Now this is all about invertebrates. If you have any question regarding this chapter, you can comment below. I will definitely answer your question. Take care. Allah Hafiz.